नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। Please, nothing is going on record. Nothing is going on record. If you can't hear your chairman, nothing can go on record. Hear the chairman first. I have an appeal to make. Nothing is going on record except what I will say. No. Honorable members, take your seat. Nothing has been go record. Honorable members, yesterday marked the historic milestone, the beginning of the final quarter century before our constitution turns 100. This was a moment for our House of Elders. On the table of the House, listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you, sir. Our journey towards Viksit Bharat 2047. It is with deep concern, I must say, we missed the historic opportunity where there should have been productive dialogue, constructive engagement, echoing the collective aspirations of our people. We fell short of their expectations. Honorable members, this chamber is more than just a house of debate. Our national spirit has to echo from here. Parliamentary disruption is not remedy, it's a malady. It weakens our foundation. It slides Parliament into irrelevance. We must continue to have our relevance. Honorable members, when we engage in this kind of conduct, we deviate from constitutional ordainment. We show our back to our duties. If Parliament strays from its constitutional duty to represent people's hopes and aspirations, it is our duty to nurture nationalism, further democracy. I urge you all to embrace the spirit of meaningful dialogue. Let us return to tradition of thoughtful discussion. Honorable members, I plead with you, I request you for cooperation. Allow me to take agenda of the day. Be assured you shall have opportunity to raise all issues. Parliament is a platform for productive discussion. Every time is no. Question hour is important. I have already taken a call. He was not present. Honorable LOP was not there. Please make him aware of my ruling. I have already declined having taken a view. I cannot allow this house to get into irrelevance. We should not dishonor the spirit of those who gave us this constitution. No. There is no reason for us not to proceed with the house. Sorry. The house stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 29th November 2024. शुरुआत हुई 12 बजे, वापस शुरू हुई और अब आपको बता दें कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई है। तो एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ा है राज्यसभा और आपको बता दें राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये दूसरा दिन है और उसके बावजूद भी तीसरे दिन हम कह सकते हैं कि तीसरे दिन वापस कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। जनहित से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। सभापति कहते रह गए ये प्रश्नकाल है, आप प्रश्न पूछिए ना कि आप हंगामा करिए। तो हंगामे की वजह से एक बार फिर से सदन की कार्यवाही बाधित हुई है
और आपको ये भी बता दें, विपक्ष लगातार संभल के मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ था। ठीक कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार लोकसभा में भी सामने आ रही हैं। 12 बजे के बाद वापस से कार्यवाही शुरू हुई है। दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ। इस बीच जो जानकारी है वो ये कि राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में कार्यवाही इस वक्त जारी है। तो विपक्ष के हंगामे के चलते तीसरा दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ गया है। हालांकि आपने सुना होगा कि राज्यसभा में लगातार सभापति कहते रहे प्रश्नकाल है ये, आप अपने प्रश्नों को पूछिए, ना कि आप हंगामा करिए। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, देखिए, एक बार कार्यवाही शुरू होती है 12 बजे के बाद वापस स्टार्ट की जाती है, फिर से राज्यसभा की कार्यवाही का जिक्र किया जाए तो स्थगित कर दी जाती है। जाहिर सी बात है, जनता की गाढ़ी कमाई से संसद का सत्र चलता है। 2 से 3 दिन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी काम नहीं हुआ। आनंद। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद भवन और लगातार आप एक ही तस्वीर पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि संसद चलाया जा सके, प्रश्नकाल चलाया जा सके, शून्यकाल चलाया जा सके, लेकिन विपक्ष अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अडिग खड़ा है। जो तमाम हिंसा हुई है, जो उपद्रव हुआ है उत्तर प्रदेश के संभल में, उसको मुद्दा बना रहा है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार मुद्दा बना रहा है, जिसको लेकर अभी राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है कर के लिए। और लगातार लोकसभा में भी कोशिशें की जा रही हैं कि सदन को चलाया जा सके। पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू लगातार विपक्ष के नेताओं को समझा रहे हैं कि आप इस वक्त यहाँ बात करिए, चर्चा कीजिए, लेकिन उसके बाद आप देखिए हंगामा लोकसभा में भी बदस्तूर जारी है और लगभग कुछ देर में ही हो सकता है कि लोकसभा को भी स्थगित कर दिया जाए कल के लिए। लेकिन आपको समझना होगा, तस्वीरें बदस्तूर पिछले कई दिनों से एक हैं। अडानी पे जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष अडिग खड़ा हुआ है, उसके साथ साथ संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी खड़ा है और तमाम बातचीत करने को लेकर। देखिए आनंद, इस तरीके से लगता है लगातार पहले से ही जो विपक्ष है वो मन बनाकर बैठा है। इससे पहले देखा होगा कि जब सत्र की कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी, संसद के ठीक बाहर आके खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देखिए, आप असल मुद्दों पर चर्चा करिए, जनहित मुद्दों पर बातचीत करिए। कुछ सांसद पूरे की पूरे संसद को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, जो कि वाकई में निंदनीय है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने पहले भी देखा होगा, अडानी वो मुद्दा रहा है जिसके चलते लगातार विरोध हुआ और पिछले कई सेशन इसके चलते आहूत उसमें हो गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई। और ये भी विंटर सेशन में लगातार तीसरे दिन भी बदस्तूर उसी हंगामे पर आज स्थगित कर दिया गया है कल के लिए। तो कहीं ना कहीं एक सवाल है विपक्ष के ऊपर भी कि अगर आपको चर्चा करनी है अडानी मुद्दे पर, जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा है, तो जेपीसी की मांग लोकसभा में होगी। लोकसभा के पास ये अधिकार है कि जेपीसी इसको लेकर बनाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जेपीसी की मांग के साथ जो हिंसा हुई उत्तर प्रदेश के संभल में, उस पर सपा लगातार हमलावर है। और कारण ये है कि वो बातचीत के बजाय हंगामा कर रहे हैं। हंगामा आपने देखा कई वरिष्ठ सांसद तक कर रहे हैं, जिसके बाद लगातार कोशिश की गई समझाने की। उपसभापति अगर बात किया, उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ खुद बात कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब विपक्ष के सांसद नहीं मांगे तो उनको स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में खुद किरेन रिजिजू जो कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है वो समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदस्तूर कोशिश की जा रही है कि समझा बुझा के चीजें ठीक की जा सके अगर, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार हंगामा बदस्तूर जारी है और लोकसभा भी कुछ देर में स्थगित करने को लेकर। तो देखिए, अभी अपडेट भी देते हैं आपको आनंद। लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लेकिन सवाल वही है कि जनता की गाड़ी कमाई से संसद का सत्र चलता है, उसके बावजूद भी आपको बता दें कि कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चल पाती है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। फिलहाल देखिए, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। विपक्ष का हंगामा इस कदर जारी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।